سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی ایک شمع جلاتے ہو، اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم اپنی طرف سے نبھاتے جاؤ، اور منہ میں زبانیں ہیں، کمال وہ کرتے ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں۔ حضرت زبان کا فائدہ تب بھی ہے جب آپ حق کا ساتھ دیں گے، ورنہ اس پورے جسم کا کوئی ٹکے کا فائدہ نہیں۔ مولا علی کا قول ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں جنہوں نے موت کے ڈر سے حق کا ساتھ نہیں دیا، مار تو پھر بھی گئے، مار تو پھر بھی گئے۔ تو جو منصب ملا ہے، آپ نے اپنے منصب کے ساتھ صرف وفاداری کرنی ہے، ایمانداری کرنی ہے اور دیانتداری کرنی ہے، بات سمجھے نا؟ اور مطلب ایک ہو کہ ہم نے چلنا ہے، باتیں کرتا ہوں بڑا کچھ سیکھا ہے میں نے، آگے سکھاتا ہوں، اگر کوئی بولتا ہے تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے، قسم خدا کی۔ مجھے یہ نہیں، میں تو کہتا ہوں ہر بندہ بولے، ہر بندہ بولے، یہ نہیں میں ہی خالی بولوں۔ بھائی کتنا عرصہ قبلہ اپنا جو ان کا منصب تھا، جو ان کی، یہ نہیں کرنا ہے تو کوئی ہم سے بات کرے تو ہم کہ بھائی میں آپ کو قبلہ کی ایک کیسٹ دوں گا، ایک خطاب تو آپ سن لیں، تو میں بتا کس لیے جہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے آج تک کسی سے نہیں یہ نہیں کہا، اور یقین کریں گے کوئی کسی نے سوال کیا میرے سے، بات سمجھے نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ قبلہ کی میں آپ کو کیسٹ دوں گا، سی ڈی دوں گا تو وہ قبلہ کا آپ خطاب نکال کے سنیں، تو میں ساتھ چاخمار کی طرف دیکھا تھا۔ تو محمد بن قاسم سے کسی نے پوچھا کہ تم سے پہلے بھی 2-3 کمانڈر گئے اپنی قوم کی فوج لے کر تو ناکام واپس آئے، جب تو گیا تو کامیاب واپس آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے سیکھنا تو انہیں لوگوں سے سیکھنا ہے نا جی، اور کس سے سیکھنا ہے مجھے بتائیں، بات سمجھے نا؟ اس نے کہا جب میں گیا میں یہ سوچ کر گیا کہ جس عورت پر ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ عورت میری بہن ہے۔ جب یہ اپنیت کا احساس پیدا ہوا میرا ضمیر بیدار ہوا، جب میرا ضمیر بیدار ہوا اللہ کی مدد اتری اور میں کامیاب ہوا۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے میں نے کہا آپ کی کتنے بڑے بڑے خطاب ہوتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، یہ میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوں، قبلہ نے کہا مجھے خوشی نہیں ہوتی بیٹا، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں جب میں خطاب کروں میرے سامنے صرف 4 آدمی بیٹھے ہیں، وہ ٹیپو سلطان ہو، محمد بن قاسم ہو، خالد بن ولید ہو، طارق بن زیاد ہو، بس ایسے 4 بندے ہو۔ ویسے چلے آپ بیٹھے سیکھنا چاہے تو آدمی بند کمرے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، مثلا بند کمرہ کیا میسج دیتا ہے کہ چھت ہے، چھت کیا میسج دے رہی ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات بلند رکھو، بات سمجھے نا؟ اب چھت زمین کے ساتھ کبھی نہیں ملے گی، بے شک اس کے اوپر آپ کتنے خوبصورت سونے کے ٹیلے لگا دینا، وہ پھر بھی متاثر ہو گا میں تیرے سے اونچا ہی ہوں، مجھے تیرے سونے کی ٹیلوں سے کیا دینا ہے، بات سمجھے نا؟ تو چھت کیا میسج دیتی ہے؟ چھت یہ میسج دیتی ہے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات بلند رکھو۔ اب ٹیوب لائٹ کیا میسج دیتی ہے کہ روشن خیال بنو اور دوسروں کے لیے روشنی پیدا کرو۔ گھڑی کیا میسج دیتی ہے کہ وقت کی قدر کرو، وقت کی قدر کرو، کیونکہ میں کئی بار کہتا ہوں نا وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا، وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ ہم اس کو وقت نہیں دیتے ہیں، ٹکے ٹکے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شیشہ کیا کہتا ہے، جو روحانی اور جسمانی طور پہ خوبصورت بنتا ہے۔ بیڈ کیا میسج دیتا ہے کہ جس طرح تم سکون سے سوتے ہو دوسروں کو سکون سے سونا دیتے ہو۔ بند کمرہ کیا میسج دیتا ہے کہ جس طرح میں نے تمہارے ایپ چھپائے ہیں تم دوسروں کے ایپ چھپاؤ۔ ایک گناہ میرا معاف ہوئے کہ لکھ گناہ میرا مالک ہوئے کہ کج کج پردے پا رہا ہے۔ کام جنہ دا سیوا کرنا مال نہیں بندے پلے، سوئی آپے ننگی رہندی سب دے سیوے پلے۔ ہوئی آپ ننگی رہندی سب دے، تو ہم تو بہترین انسان ہیں،
सीखने वाले कहाँ से सीख लेते हैं, मुझे बताते ना। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा ना कि तूने अदब कहाँ से सीखा, उसने कहा बेअदबों से। वो कैसे, जो हटते वो करते हैं, मैं वो नहीं करता। सीधी बात है। आपको देखें, आप देखें ना, अगर हम आम लोगों जैसी हरकतें करें, तो कोई शायर था ना, तो वो शेर कह रहा था मजमे में, तो नीचे से किसी आदमी ने कोई मतलब जुगत की या कुछ किया नीचे से, तो वो शायर पता क्या कहने लगा, मतलब देखें एक एक जुमले के अंदर पूरा पूरा समंदर होता है, लेकिन लेने वाला कोई हो तो सही ना। हम तो माइले बाकरम है, कुछ साहिल ही नहीं, राह दिखलाए किसी को राह रवे मंजिल ही नहीं, उस काबिल हो तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को हम दुनिया एक नहीं देते हैं। बात समझा ना। तो उसने नीचे से कोई मतलब जुगत की, तो शायर ने पता क्या कहा, उसने कहा बेटा मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए 40 साल लगाए हैं, लेकिन जब मैं तुम्हारे तक पहुँचूंगा ना 1 मिनट लगेगा, तो मैं 40 साल जाया नहीं कर सकता। यानी कि आप ज़हन में ये रखें कि सामने वाला आपको अपने मकसद से हटा रहा है, दूर करना है। क्या आप उसकी बातों में चले गए या आप जब उसकी बातों में गए तो ये समझ लें कि वो गटर में पड़ा हुआ है ना, तो आपको भी गटर में जाना पड़ेगा, बस खत्म, आपका सब इल्म खत्म हो गया। क्योंकि जब आप गुस्से में आएंगे तो गुस्से में जो आरी के साथ, जैसे वो बंदा किधर गया ना, बंदा किधर गया ना मांगने वाला, तो उसने एक घर से दरवाज़ा खड़काया, कहने लगा जी प्यासा हूँ मुझे पानी दो, प्यासा हूँ मुझे पानी दो। अंदर से आवाज़ आई, वो कहना घर में बंदा नहीं है, घर में बंदा नहीं, ज़रा को मसरूफ़ होगा, अकेला आदमी होगा। उसने फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ दी, साहब जी को पानी दो ना, कहना घर में बंदा नहीं है ना, तुझे बताया ना। तो वो आगे से क्या कहता है, साहब जी थोड़ी देर के लिए आप ही बंदे बन जाए ना। मतलब हम भी तो बंदे बने ना जी, रब ने बंदा बनाया, फरिश्तों ने हमें सजदा किया है। आज अगर किसी आदमी को कहते हैं ना फरिश्ता साफ आदमी है, फरिश्ता सीरत आदमी है, तो वो बंदा बेवकूफ़ बड़ा खुश होता है। उस पागल को पता नहीं है कि साजिद और मसजूद बराबर नहीं हो सकते बाबा, उसने हमें सजदा किया, फरिश्ता हमसे कैसे बेहतर हो सकता है। देखिए अब दीन इस्लाम के 2 हिस्से हैं, एक हुकूकुल इबादत वाला है, एक खिदमत वाला है, एक इबादत वाला है, एक खिदमत वाला है, एक इबादत वाला है, एक खिदमत वाला है, ठीक है ना। अगर आप खिदमत निकाल दें तो सिर्फ इबादत बच जाती है, तो इबादत से फरिश्ते बनते हैं, इंसान नहीं बनते बाबा। इबादत से सिर्फ फरिश्ते बनते हैं, तुम जितनी मर्जी नमाजें पढ़ो। मतलब मुझे आप ये बताएं कि दीन इस्लाम की इब्तिदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी है। तुम उतनी देर तक नेकी की गर्द को पा ही नहीं सकते बाबा। अल्लाह ताला ने 2 लफ्जों में बात ही बता दी है, जब तक तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान नहीं करते। बातों पर नहीं कहा, अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान नहीं करते। अगर हम नहीं कर सकते तो हम नेकी की गर्द को पा ही नहीं सकते। तो बातें तो आज आप नट खोल के देख लेना, मुनासिब भी बड़ी बड़ी बातें अच्छी अच्छी कर जाते हैं। नहीं सही बात है, बात समझिए। ड्रामों वाले फिल्मों वाले भी बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर अमल नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। हम लोग मैंने कहा किताब में ये वाक्य लिखा है, ठीक है ना। तो उनका मुरीद आया तो उसने पीर साहब जेब में 10 रुपये डाले, सुना हुआ है ना, तो दुआ करेंगे मेरे ऊपर 100 रुपया कर रहा है। वो दुआ करा के पीर साहब से चला गया। इलामा इकबाल अब पास बैठा था, जो वलीगार था, वली बनाने वाला। मैं उसको वलीगार क्या था, उसको जिसने पढ़ाया दिल से वली हो, दिल से पढ़ा है, वहाँ से क्या है दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जिक्र नीम छवि ये मराठे ये सुरूर तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। समझे ना। तो उसने इकबाल ने कहा कि भाई उससे, क्योंकि वो 10 रुपये जेब में डाले ना, तो कहने लगा पीर साहब मेरे लिए दुआ करे 100 रुपया करता है। अब वो दुआ की तो गरीब चला गया। इलामा इकबाल पास होकर कहने लगा कि आपकी दुआ आपके हक में बड़ी जल्दी करी हुई, आपके हक में 10 रुपये मिल गए ना। क्या बात कहता ये जब आपके पास आया था इसके ऊपर 100 रुपया कर्जा था,
अब आपसे मिल के गया 110 रुपए का। आप ये बताएं लोगों के मसाइल हल करने के लिए आए हैं या बढ़ाने के लिए? वो उठा जाके अपने मुरीद को 110 रुपए दे के आया और उसने कहा इकबाल के एक जुमले ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। देखें आज पीर की दुआ से मुरीद एक साइकिल नहीं ले सकता, लेकिन मुरीदों के नजराने से पीर मर्सिडीज गड़िए पुजारो ले सकता है। उनकी दुआ से मुरीद साइकिल नहीं ले सकता। मैं सही कह रहा हूँ, बातें सही हैं, बात दिल से निकलती है, असर रखती है, पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। फखर साहब नमाज में ख्याल आए, ये बड़ी कीमती बात है, बड़ी कीमती बात है। कहता है नमाज में ख्याल आए तो नमाज हो जाती है। मैंने कहा हो भी जाती है, नहीं भी होती, हो भी जाती है, नहीं भी होती, समझे ना। तो जैसे मुझे एक बंदा एक बार पूछता, कहता है जी टोपी पहन के फखर साहब टोपी पहने ना पहने तो नमाज हो जाती है। वो भी आपको बात साथ बताऊंगा, ठीक है ना। टोपी ना पहने तो नमाज हो जाती है। मैंने कहा होती भी या नहीं भी होती। वो कहता है वो कैसे? मैंने कहा अगर तूने किसी की टोपी नहीं फिराई, ये बड़ी कीमती बात है, अगर तूने किसी की टोपी नहीं फिराई, घर में बैठ के टोपी बगैर तेरी नमाज हो जाएगी। अगर तूने किसी की टोपी फिराई है खाने का पे 2 टोपियां पहन के जाने की नमाज नहीं होगी। 5 साल हो गए इन्होंने मुझे दिया हुआ है, इन्होंने कभी मांगा नहीं, कभी मांगा भी नहीं। अब मुझे नमाज में ख्याल आया, अब मैंने नमाज के दौरान सोचा कि अब नमाज पढ़ के निकलूंगा, हाफिज साहब के घर जाऊंगा, पहले वो लाख रुपये लेके आऊँगा। वो ख्याल से हो गई। अब मेरी बात समझ गया ना। अब दूसरा ख्याल है, वो यही आया कि हाफिज साहब के देने हैं, बात समझ गया ना। अब सोचा उनको कौन सा याद है, 5 साल तो हो ही गए। उन्होंने कभी फोन ही नहीं किया, मुझे बताने की क्या जरूरत है, उनको देने की क्या जरूरत है, छोड़ो रहने दो, चलने दो। अब मैंने कहा तुम मुझे बताओ मेरी कौन सी नमाज हुई है। ख्याल है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कुछ कम ना थे। उसने अगर अपनी इबादत ही करानी होती तो उससे करोड़ गुना फरिश्ते हो। देखे ना आप, जो रोजे पे एक बार फरिश्ते आते हैं, दोबारा उनका क़यामत तक नंबर ही नहीं आएगा। अब अंदाज़ा लगाए आदमी की कितने फरिश्ते, क्या ख्याल है? वो इतने और भी बना सकता है, और भी हमें बनाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही रफड़ डालने की। वो मेरा एक छोटा सा क्लिप है, आपने देखा होगा किसी ने, बड़ा वायरल इंसान 5-6 करोड़ लोगों ने देखा है। तो उस बंदे ने मुझसे खाली इतना सवाल किया है कि भाई इंसान का मकाम क्या है, इंसान का मकाम क्या है। मैंने बस ये बात करके तो फिर खाना शुरू किया, मकाम क्या है। मैंने उसको 2 लफ्ज़ों में बताया। मैंने कहा देखे अल्लाह ताला ने सारे ख़जाने कहाँ रखे हैं, पानी कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, फल फ्रूट कहाँ से आते हैं, पूरी कायनात के सारे ख़जाने, जितनी तरक्की हुई है सारी चीज़ें कहाँ से निकली हैं, ज़मीन के अंदर से। मैंने कहा सारे ख़जाने किसके नीचे हैं, ज़मीन के। ज़मीन कहाँ है, हमारे पैरों के नीचे। सारे ख़जाने ज़मीन के नीचे, जिनके लिए आज हम लड़ रहे हैं और मर रहे हैं, वो हमारे पाँव के नीचे। बाबा जो चीज़ पाँव के नीचे उसकी क्या हैसियत है, मुझे ये बताएं। रब ने कहा है ना कि सारी कायनात बनी है तेरे वास्ते, तू बना है मेरे वास्ते। हम अल्लाह के खलीफा हैं, नबी के नाइब हैं, कुरान के वारिस हैं, इस्लाम के नुमाइंदे हैं। इकबाल ने कहा ना काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान है गुम उसमें आफाक है। ना तू ज़मीन के लिए ना आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। आज हम टके टके चीज़ों के लिए मर रहे हैं, बिक रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई मरना ही है, अफलास की तोहमत से गुजर क्यों नहीं जाते? मरना है एक रोज तो कुछ कर क्यों नहीं जाते? कुछ कर क्यों नहीं जाते? मौला अली का कौल है ना कि इंसान दुनिया में गफलत की नींद सो रहा है, मौत आगे से बेदार करेगी। बड़ा खुश नसीब है वो इंसान जिसकी दुनिया में आँख खुल जाए। मैं कहता हूँ दुनिया में आँख खुलने का मतलब ये है कि जो सही को सही और गलत को गलत के, सही का साथ दे और गलत को छोड़ दे। अगर हम सही को सही और गलत को गलत कह रहे हैं लेकिन हक का साथ नहीं दे रहे, तो हमारे सही को सही कहने का टके का फायदा नहीं। हर आदमी के अंदर हुसैन भी मौजूद है, यजीद भी मौजूद है। हर आदमी नज़र झुका के देखे मैं प्रैक्टिकल ज़िंदगी में साथ किसका दे रहा हूँ। अगर साथ यजीद का दे रहा हूँ तो बस मैं नमाजें पढ़ूँ, रोज़े करूँ, हज पढ़ूँ, अल्लाह अल्लाह करूँ, तस्बीह पढ़ूँ, सब ज़ीरो है, सब ज़ीरो है। भाई आपकी बात ही तो करो।
حق کی بات بہترین انسان ہے جی، ہم عام نہیں ہیں. رب نے شیطان کے ساتھ ہماری وجہ سے دشمنی لی ہے، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ ہماری وجہ سے رب نے شیطان کے ساتھ کیا دشمنی تھی جی؟ اس نے تو 6 کروڑ خالص سجدے کیے، 6 کروڑ سال خالص سجدے. اس کا ایک سجدہ دنیا کو مجھے بندہ بتا دے ناقص ہے. ہمارے سارے سجدے ناقص ہیں، ہمارے سارے سجدے میں ثابت کر کے بتا سکتا ہوں، آپ کو ٹائم نہیں ہے ابھی، لیکن اس کے سارے سجدے خالص ہیں. خالص سجدوں کا یہ حال ہے. ایک بات نہیں مانی، مجھے بتائیں نا، اے نفس کے ہاتھوں تو مجبور کتنا، سب جان کے بھی اللہ شعور کتنا. جس چہرے پہ تجھے مان اتنا، اس چہرے پہ تجھے غرور کتنا. ایک سجدہ کے انکار میں ابلیس کو شیطان بنا دیا تو خود جان لیا تیرا قصور کتنا.